Hello friends, welcome to our channel. Our today's topic is noun and its kinds. So let's learn first thing, that is what is the noun. It is a question about noun. So let's learn what is the definition of noun. Noun definition. A noun is a word by which a person, animal, place, thing, quality, etc. is named. Means कि नाउन एक ऐसे वर्ड हैं जो कि किस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, किसी एनिमल के नेम को या किसी प्लेस के नेम को या किसी थिंग के नेम को या किसी चीज़ की क्वालिटी को या किसी पर्सन के नेम को. Okay, so let's see the examples. Our first example is person Pooja and Rajesh. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जिन जिन वर्ड्स को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि अ पर्सन, पूजा, राजेश. पर्सन का एग्जाम्पल है पूजा, राजेश. देन सेकेंड इज एनिमल. एनिमल्स का एग्जाम्पल है एस, काउ एंड goat, etc. थर्ड इज प्लेसेस. कानपुर, लंदन, ग्वालियर. ओके. देन फोर्थ इज थिंग्स. थिंग्स में क्या क्या आता है? टेबल, बुक, चेयर, एक्सेट्रा. एंड फिफ्थ इज लास्ट वन, क्वालिटीज. जस्टिस, ओनर, कवरेज. क्वालिटीज के अंदर क्या आता है? जस्टिस, ओनर, कवरेज, करेज. ओके. एंड एक्सेट्रा. There are more few words. Okay. So now let's learn that how many types of nouns are there and what are they and how to use it. Okay. So first we will learn how many types of nouns are there. There are 5 kinds of noun, and that are common noun, proper noun, collective noun, material noun, abstract noun. So children, let's begin. Let's start with the first kind of noun to last kind of noun. First we will learn about common noun. Common noun is on the right side. Common noun. A common noun names any person, place, thing or idea. Common noun किसी भी एक common person या कोई common place या कोई common idea को name करता है. Okay? मतलब कि इन सारे नेम, इनके जैसे नेम को हम common noun कहते हैं. किनके जैसे? किसी कॉमन पर्सन या किसी कॉमन प्लेस या किसी कॉमन थिंग के नेम को हम कॉमन नाउन कहते हैं. कॉमन नाउन्स आर नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस दे कम एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल अबाउट द कॉमन नाउन. ये कॉमन नाउन के लिए हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बिकॉज ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि कॉमन नाउन जो है वो कैपिटल में कभी नहीं लिखा जाता जब तक वो सेंटेंस के पहले, मतलब स्टार्टिंग में ना आए. ओके. लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ कॉमन नाउन. टीचर, बेसबॉल, सिटी. सो आवर फर्स्ट एग्जांपल इज टीचर. इट इज अ कॉमन थिंग, कॉमन नेम. Okay. Then baseball, it is a common thing. City, it is a common place. Okay. Let's see some more example of common nouns. Book, table, car, water, milk, oil, music, art, literature, dog, woman, teacher. Okay. Like this. These are common things. Okay. Okay.
So let's come to second type of noun, that is proper noun. Okay, so let's see about the proper noun. A proper noun is a special name that names a particular person, place or thing. Means कि जो proper noun होता है ये किसी स्पेशल नेम को बताता है, मतलब कि किसी स्पेशल पर्सन के नेम को, जैसे कि किसी प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर के नेम को हम कहते हैं स्पेशल नेम, VIP names. Okay, a proper noun names the VIP names. Okay, that names are particular person, प्लेस और थिंग, या कोई पर्टिकुलर प्लेस या बहुत कोई फेमस प्लेस हो उसको भी हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, या कोई एक पर्टिकुलर थिंग हो. ओके, सो लेट्स सी हियर रॉय. ओके, एडन टाउन, इट इज अ पॉपुलर प्लेस. सनसेट पैलेस, इट इज अ पॉपुलर प्लेस. लेट्स सी सेकंड पॉइंट. A proper noun can be made up of more than one word. Means कि proper noun एक word से ज़्यादा का भी हो सकता है. proper noun के जो words होते हैं, जो उनके name होते हैं, वो एक word से भी ज़्यादा हो सकते हैं. A proper noun always begins with a capital letter. और proper noun कभी भी छोटे letters में नहीं लिखा जाता, हमेशा बड़े letters में लिखा जाता है. Okay, so let's come to collective noun, that is our third kind of noun. Collective noun, a noun that refers to a group of an object including groups of people, animals and the things. Okay, so I will explain you about collective noun. It means कि एक ऐसा नाउन जो कि ग्रुप में हो, किसी पीपल के ग्रुप, एनिमल्स के ग्रुप या किसी थिंग के ग्रुप को या किसी ऑब्जेक्ट के ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. जैसे अ बकेट ऑफ फ्लावर्स, इसमें बकेट हमारा कलेक्टिव नाउन है. क्यों? क्योंकि हमारा फ्लावर क्या हो गया, हमारा थिंग हो गया. और फिर फ्लावर का हमने खूब सारा ग्रुप बनाया, वो मिलके बना एक बकेट, तो हमने उसे क्या माना, collective noun. Then let's see the second example. A pot of peas, मतलब कि एक pot जो कि peas से बना हुआ है. peas एक thing हो गया और फिर हमने उसको बहुत सारा ग्रुप करके बनाया, तो वो हमने क्या माना उसको, collective noun. A herd of horses. हॉर्सेस के हर्ड को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं क्योंकि ये एक एनिमल का ग्रुप हुआ. अ मैथ क्लास, मैथ क्लास मीन्स मैथ के क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होंगे, तो वो एक पीपल्स का ग्रुप है एक क्लास में, मैथ के क्लास में. ओके, सो दैट इज ऑल्सो कलेक्टिव नाउन. अ बेसबॉल टीम मीन्स बेसबॉल की टीम, ये भी एक पीपल का ग्रुप हुआ. अ प्राइड ऑफ लॉयंस, ये एक लॉयंस का ग्रुप हुआ, मीन्स एनिमल्स का ग्रुप हुआ. सो दैट इज ऑल्सो कलेक्टिव नाउन. अ क्लस्टर ऑफ ग्रैप्स, एक ग्रैप्स का क्लस्टर मीन्स कलेक्टिव नाउन बिकॉज ग्रैप्स इज अ थिंग and it makes a group, so it becomes a cluster. So we read it as a collective noun. Okay, let's go to the fourth kind of noun, that is material noun. Material noun, material noun is a substance, a material or an ingredient we can see and touch which is used for making things. मटेरियल नाउन क्या होता है, ये एक सब्सटेंस को हम किसी सब्सटेंस या किसी मटेरियल या किसी इंग्रेडिएंट को हम मटेरियल नाउन कहते हैं जिसे हम सिर्फ
देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं या उसे किसी चीज को बनाने में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, कोल, व्हीट, रबर एक्सेट्रा। गोल्ड हो गया हमारा सब्सटेंस, कोल हो गया हमारा सब्सटेंस, ओके। देन व्हीट हो गया हमारा मटेरियल बिकॉज वी यूज इट फॉर मेकिंग द food, okay. Then wheat is an ingredient because we are taking it for making the food now. That is ingredient. Rubber is a material, okay, and etc. Material noun usually a uncountable noun. Material noun अक्सर करके uncountable noun होता है। uncountable noun मतलब जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जिन्हें हम काउंट कर ही नहीं सकते, ओके। तो मटेरियल नाउन नॉट द 100% बट 95% इट इज अ अनकाउंटेबल नाउन ऑल्सो, ओके। फॉर एग्जाम्पल द विंडो इज मेड ऑफ ग्लास। In this sentence, window is a common noun and glass is a material noun. Material noun become a common noun if there is an article before it. Material noun कभी कभी common noun भी बन जाता है अगर मतलब कि मटेरियल नाउन के वर्ड के आगे हम कोई आर्टिकल लगा दें ए एंड द में से, तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। और द नाउन फॉर एग्जाम्पल द ग्लास। अभी हमने यहाँ पे देखा, ये जो हमारा फोर्थ पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट पे जो हमारा एग्जाम्पल था उसमें हमने देखा कि ग्लास जो है हमारा वो मटेरियल नाउन है। बट वाई द ग्लास इज नॉट अ मटेरियल नाउन बिकॉज वी हैव एडेड द आर्टिकल बिफोर इट, ओके। और द नाउन इज इन द प्लूरल, example glasses, okay. So let's come to our fifth and the last kind of noun, okay, that is abstract noun, okay. You are enjoying it now? I hope you are enjoying very much. So let's start our fifth topic, that is abstract noun. Let's see the definition of it. An abstract noun names ideas, feelings and the characteristics. Means कि abstract noun basically एक feeling को means एक feeling को express करता है, okay. जैसे कि example bravery, love, happiness means bravery। अगर हम इसको सिर्फ brave लिखते हैं तो वो हो गया हमारा common noun, पर हमने ERY लगाया तो ये बन गया हमारा bravery, जिसे हम कहेंगे abstract noun because bravery is a feeling, love that is also a feeling, happiness that is also a feeling. So we have learned so much thing in this class. If you like the video, please like, share and subscribe. Tap bell icon to get the notification. Thanks for watching my channel and stay home, stay safe, okay, and take care about the COVID-19, that is a coronavirus. Stay safe from the coronavirus. I am hoping that you have liked my video. Please like, share and subscribe fast, okay. Bye friends.